Hello everyone. Today we will be starting with the second part of the chapter People as a Resource. In the previous class we had already covered topics up to the sector education, wherein we discussed three methods or three ways by which the government was aiming at increasing the gross enrollment ratio in schools. We discussed about three schemes launched by the government to increase this. The first one was related to midday meal scheme. The second one was related to Sarva Shiksha Abhiyan, and the third one was related to Navodaya Vidyalaya. In all the three schemes that I have mentioned over here, we see that with the coming up of all these schemes, there has been some or the other kind of improvement that we see in the sector of education, and people definitely have moved on to send their children to school, and definitely a very big impact has been laid in the difference of the literacy rate that we see in previous years and in the coming years, and the data that we have of the previous years, that is up to 2011, right? Now, we also see a very stark difference in the literacy rate when we talk about of the girls and boys. Definitely, there is a change in the percentage of literacy rate with respect to males and females. It is slightly higher in case of males. It is 16.6% higher in case of males that it is in female. But if we consider the overall literacy rate of the country, it has improved drastically. However, we have certain states in India where we see interstate disparities, like a state like Kerala has supposedly 94% literacy rate attained, whereas a state like Bihar has approximately 64% literacy rate. Overall literacy rate of the country is 76%, right? So what are the changes, what all we had learned? We will begin with a quick revision type of, like we studied about education, right? In education, we had studied that what all are the positive impact of education. The first positive impact is that it opens up new horizons for you, right? In front of you, you have many ways wherein you can choose which path to take. So, with the help of education, you can attain that correct knowledge that which path to choose first. The second positive impact, it can also be utilized, the available opportunities which come by your way can be utilized only by the means of education, is the second positive impact. The third positive impact is that definitely being a worker or being a citizen of the country, you definitely enjoy certain kinds of rights, but rights are all those claims which are, if violated, are changeable or are claimable by law. तो अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, रादर वर्क प्लेस पर हो रहा हो या एनी अदर प्लेस, अगर ऐसा कोई भी वायलेशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उस चीज का हम रिपोर्ट कब कर सकते हैं? जब हमारे पास उसकी करेक्ट नॉलेज होगी. सो दिस ऑल्सो यू गेन्स थ्रू education, right? So in the field of education, as I had told you, there were three schemes which were launched. The first one was midday meal scheme. The second one was Sarva Shiksha Abhiyan, and the third one was Navodaya. Now, what was the impact that we see over here in this sector? इसका इम्पैक्ट ये आया कि सबसे पहला तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ. गवर्नमेंट का इन तीनों स्कीम्स को चलाने के लिए जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, उस इन्वेस्टमेंट में बहुत वेरिएशन आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So initially the investment was approximately of 151 crore, which got changed to 3766.6 crores.
तो फर्स्ट इम्पैक्ट और फर्स्ट चेंज किस में आया? इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट फाइनेंशियली, ठीक है। जो सेकेंड इम्पैक्ट आया इसकी वजह से द लिटरेसी रेट ऑल्दो इज स्लाइटली हायर in males by 16.6%, right? The overall literacy rate of the country has jumped from 14% in 1951 to 76% in 2011. So this is a very major jump, although it is higher in males. The next is, we have some states like Kerala which have reportedly 94% literacy, whereas we have some other states like Bihar which have 62% of this literacy rate, right? Then what is other major positive impact? The gross enrollment ratio, which you can shortly call as GER. This GER increased from 25.2% to 30%. Now these are all the major positive impacts that we have seen in the field of education. Now we move on to the second quality of population, wherein we will be assessing the factor of health. Now let us look at what are the positive impacts which health can bring about. अगर हम एक health के aspect से बात करें तो it makes a person realize his full potential or the ability to work, right? If you are supposedly free from any sort of illness or something, you don't have any sort of disease, or you are in fact either prone to any of the diseases, you will have your full enthusiasm, your full ability to work in a better manner than a person who is rather a sick man, right? So health of a person is very important with respect to when it comes to realizing your potential and your capacity to work. Moreover, both these factors, if combined together, if you are educated and if you are healthy, this will lead to ultimately increase in national income of the country, right? Obviously this is a positive impact. अब जब हमको हेल्थ की बात करनी है तो हेल्थ को मेजर करने का क्या इंडिकेटर है, हम कैसे माने कि हमारी कंट्री हेल्दी कंट्री है, ठीक है। अब हेल्थ को मेजर करने के लिए इन्होंने दो क्राइटेरिया डिफाइन कर रखे हैं। तो पहला क्राइटेरिया है अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसमें इन्फेंट का मतलब है चाइल्ड below 1 year, mortality means death, and rate means the pace at which persons die. This concept can be defined as number of children died before completing 1 year per 1000 live births is called as infant mortality rate. That means the number of children that die before completing even 1 year of age. Now this is an important concept because it may be resultant of either, you can say, malnutrition,
or some of the diseases which are even caused by some basic things which are lagging in our diet. So malnutrition is one of the causes, or you are prone to such disease which is incurable. तो हमने हेल्थ को मेजर करने का एक इंडिकेटर बना रखा है कि अगर ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हायर है, यानी कि बच्चों की डेथ रेट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू पर 1000 लाइव बर्थ, सो दिस इज अ नेगेटिव साइड, मतलब कि हमारा हेल्थ वाला जो फैक्टर है वो स्टेबल नहीं है एंड इट इज लीडिंग टू सम काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी. तो पहला क्राइटेरिया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का. और दूसरा क्राइटेरिया जो हेल्थ के उसमें अफेक्ट करता है वो है इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्लास 8 का टॉपिक समझना पड़ेगा. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है या हाउ डज इट चेंज और हाउ डज इट अफेक्ट. आपने क्लास 8 में इफ यू रिमेंबर आपने एक पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ा होगा जिसमें हम एज को 3 कॉम्पोजिशन में डिवाइड कर देते हैं या बांट देते हैं. जब हम एज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 एज ग्रुप निकल कर आते हैं, राइट. हमारे पास सबसे लोअर एज ग्रुप होता है इन्फेंट्स का, या फिर द पॉपुलेशन विच इज डिपेंडेंट, बेसिकली चिल्ड्रंस वाला जो एज ग्रुप है 0 to 14-15 ईयर्स वाला. The second age group is from 15 to 59 years and the third age group is from 60 years and above, right? अब जब हम वो पिरामिड बनाते हैं तो किसी भी कंट्री का आइडियल पिरामिड वो होता है जिसमें दोनों एज ग्रुप, द एज ग्रुप विच इज लाइंग एट द बॉटम यानी कि बच्चों वाला, इन्फेंट्स वाला, और जो एज ग्रुप बिल्कुल टॉप पर है एल्डरली वाला, वो दोनों कम होने चाहिए. कम क्यों होने चाहिए? सिंपल सा रीजन है कि ये दोनों एज ग्रुप डिपेंडेंट हैं किसी ना किसी पर, लाइक चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, और जो एल्डरली है वो भी हो सकता है कि डिपेंडेंट हो अपने बच्चों के ऊपर, वाइस वर्सा इज द केस. सिर्फ मिडिल सेक्शन ऐसा है, वो मिडिल सेक्शन सेल्फ इंडिपेंडेंट है एंड इज वर्किंग ऑन इट्स ओन. तो हम आइडियल पिरामिड वो मानते हैं जिसमें मिडिल वाला जो कैटेगरी होती है वो ब्रॉड होती है, नंबर ऑफ पीपल शुड बी हाई. बट जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिलेट कर रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि मतलब हम बर्थ पर अपनी कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ हेल्दी बीइंग. तो इनिशियली अपनी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, एवरेज लाइफ पर्सन की बहुत कम थी, which has now increased to a much higher age and now it is 67 years. 67 years की एज है अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज अगर अपन लगाएं तो. ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर की तरीके से देखा जाता है. द रीजन, जितनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा डेफिनेट सी बात है कि हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे किस वाले सेक्टर में, हेल्थ वाले सेक्टर में, मेडिकल फैसिलिटीज में. यानी अगर मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होती जा रही हैं तभी तो लोगों की डेथ कम हो रही है. डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं. हेंस दिस इज टेकन एज अ पॉजिटिव फैक्टर व्हेन वी कम टू इक्वेट हेल्थ एज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, राइट. हमारे यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा डेटा की बात करें तो अपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 381 तो मेडिकल कॉलेजेस हैं और हमारे यहाँ 301 डेंटल कॉलेजेस हैं. और ऐसे कुछ स्टेट्स जो मैक्सिमम कॉलेजेस जहां पर हैं दे आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, these states have the maximum number of colleges, medical colleges located within India. So these are the true criteria on which we assess the quality of population.
हमारे पास ये दो क्राइटेरियाज के बावजूद भी एक ऐसी चीज प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, डिस्पाइट पीपल आर एजुकेटेड और इफ वी टेक पीपल आर अनएजुकेटेड। एक ऐसा फिनोमिना है जो कंसिस्टेंटली राइज कर रहा है और जिसके ऊपर अटेंशन लिया भी जा रहा है, बट देयर हैज बीन नो प्रॉपर सोल्यूशन बीन टेकन आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम परसिस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी। अब अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे? यहां पर हम डिफाइन करते हैं पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट गेट वर्क ऑन वेजेस। यहाँ पर विलिंगनेस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सपोज दैट आई डोंट वांट टू वर्क, मेरे को काम करने की इच्छा ही नहीं है, उस कंडीशन में मैं अनएम्प्लॉयमेंट को रेफर नहीं करूंगी, ठीक है। बट इफ आई एम विलिंग और मेरे को विल करने के बावजूद भी मेरा मन चाहा अगर जॉब नहीं मिल पा रहा या फिर I am not getting equivalent wages according to the work that I am performing, in that condition I will be called as an unemployed, right? It is of two types. इसका पहला टाइप है which you can see in rural areas and the other one you can see in अर्बन एरियाज। ठीक, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। या तो इट विल बी बेस्ड ऑन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और इट विल बी बेस्ड ऑन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में ये आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में मिलेगा। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? जब हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें विच इज प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज, तो ये अपन को नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के ऊपर बेस्ड है ये। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब वर्कर्स को एक पर्टिकुलर सीजन के टाइम पर ही हायर किया जाता है टू परफॉर्म लेबर। सिंस मोस्ट ऑफ द बिग फार्मर्स आर नाउ डिपेंडेंट ऑन मशीन्स, मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो लेबर्स की ज़रूरत कम है। बट जहाँ पर मशीन की कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है उस टाइम पर वो लोग लेबर्स को हायर करते हैं टू परफॉर्म दोज मीनियल जॉब्स। ठीक है, अब ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। द रीजन यू आर नॉट एम्प्लॉयड होल थ्रू आउट द ईयर, यू आर ओनली एम्प्लॉयड ड्यूरिंग पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि आप बाकी टाइम पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो दिस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीजन। ये जनरली अपने पास 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खरीफ रबी ज़ैद, तो ये जनरली उस टाइम पर बुलाया जाता है वर्कर्स को जिस टाइम पर सीजन का एंड चल रहा हो, and when more labor intensive job is required where the labor will perform definitely work on in lower wages and they will have an ease and access to it. So ये seasonal unemployment prevalent है particular seasons of the month में, और बाकी time पर you are either unemployed or you go out to some other place and search for work. So this is seasonal unemployment which is based on सीजन्स। अब इसका नुकसान कि आपको अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर।
ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। डिसगाइज का मतलब होता है छुपा हुआ। अब ये छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज के अंदर बहुत बहुत कॉमन है। द रीजन फॉर दिस इज, सपोज करिए I have 5 members in my family and I owe a medium sized plot of land, and I am a farmer who is not producing commercially, but if I have something which is extra left out from fulfilling the demands of my family, I sell that surplus product to the market. But if suppose I don't have anything surplus, I consume it in my own family itself, right? Now, for a 5-member family, you require either a big plot of land, or there might be some of the family members who are sitting extra over there, जिनकी एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, और जिनको अगर हमने सपोजिटली हटा भी दिया, सो दिस वोंट इम्पैक्ट, दिस वुड पुट एन इम्पैक्ट ऑन द कल्टिवेशन, द अमाउंट ऑफ कल्टिवेशन विच इज बीइंग डन, द क्वांटिटी। ये ऐसे लोग जिनको हटाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कल्टीवेशन में, उसकी क्वांटिटी में, ऐसे लोगों को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। ठीक है, ये रूरल एरियाज के अंदर ही प्रेवलेंट इसीलिए है क्योंकि वहां पर हम सारा लेबर एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी ही फैमिलीज के विद इन। तो वो जो लेबर एब्जॉर्बिंग होती है, दैट इज मोर डेंजरस देन सिटिंग अनएम्प्लॉयड। So apparently you will look like that you are working and contributing something or the other, but actually there is no need for that contribution, and even if you are separated out from that, it won't lead to any negative impact on the amount of cultivation which has been conducted, right? So this is kind of disguised unemployment, which is also called as hidden unemployment. Now coming to the definition, the definition says, when some people are separated from doing any work, those extra members won't make any impact on the cultivation. ठीक, अर्बन एरियाज के अंदर आपको क्या मिलेगा? अर्बन एरियाज के अंदर आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज। द रीजन दैट इट इंडिकेट्स लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन द कंट्री। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि there are many colleges which are in India which are giving degrees of BTech, and there are many engineers which are passing out from the colleges. Supposedly that every year some 20 lakh engineers pass out, example, but your country's infrastructure provides job only to 15 lakh. Okay, what will the rest of 5 lakh people do? The rest of 5 lakh people either will start changing their fields, or they will be unemployed, roaming around here and there searching for some kind of work. So this kind of unemployment which is prevalent in urban areas is known as structural unemployment. This is an important concept which is prevalent in urban areas, right? Moving on further, what are the factors which are responsible for this unemployment, why it has been always on an increasing trend, and why it has been a major cause of concern for the people? The reason for this is factors affecting unemployment.
Obviously, the first factor which affects unemployment is rapid growth of population. सबसे पहला ऑब्वियस इम्पैक्ट है कि हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइज कर रही है. राइज होने से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कंट्री के अंदर, वो पहले भी उतने के उतने ही थे. रिसोर्सेज तो इंक्रीज हो नहीं रहे हैं, बट उन एग्जिस्टेंट रिसोर्सेज के ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट हो रहा है, विच इज अ नेगेटिव इंडिकेटर कि पॉपुलेशन राइज कर रही है और हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है. ठीक है. सेकेंड इम्पैक्ट इज ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. ये बहुत बड़ा सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट है. हम बार बार ऐसा रिलेट करते हैं कि हमारी कंट्री की 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, पर इस डिपेंडेंसी से एक्चुअली कोई फर्क नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि इनका इनकम जनरेशन बहुत मार्जिनल है. 60% लोग एम्प्लॉयड है, बट इनकम जनरेशन सिर्फ हार्डली 16% का है. सो दिस इज अ वाइड वेरिएशन इन द नेशनल इनकम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. हेंस हमारी इस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी इज अ बैड idea or a bad criteria which is leading to unemployment and it is rising. The third is underdevelopment of cottage and small scale industries. बहुत पहले हमारी कंट्री के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, सब तरह की इंडस्ट्रीज प्रमोटेड थी, पर अब इन सभी इंडस्ट्रीज को एक शटडाउन मिल गया है, एक क्लोजर मिल गया है, विच हैज रेंडर्ड पीपल हेल्पलेस एंड अनएम्प्लॉयड. हेंस दीज इंडस्ट्रीज आर आइदर अंडर डेवलप्ड और दे हैव बीन परमानेंटली बीन शट डाउन. राइट. सो दिस इज द थर्ड नेगेटिव फैक्टर विच इन्फ्लुएंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक. इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दैट नंबर ऑफ पीपल हु आर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड विल इंक्रीज द डिपेंडेंट पॉपुलेशन. ठीक है. हमारे यहाँ लगातार डिपेंडेंट लोगों की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. ठीक. इसका सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट है दैट इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अगर इन लोगों की तादाद बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज विच आर प्रेवलेंट इन आवर कंट्री. ठीक है. थर्ड इम्पैक्ट इज दैट पीपल हु आर left jobless or are unemployed will increase the poverty level in the country. That means people will not be able to meet the basic requirements which are required for sustainable life. Hence the increase will be in the poverty ratio. And the fourth one is that it will lead to poor quality of life. लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो पॉवर्टी इंक्रीज होने की वजह से और डिपेंडेंट पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से लोगों की लाइफ की क्वालिटी जो है वो लगातार डिग्रेड होती जाएगी. इन सभी प्रॉब्लम्स को कर्ब करने का क्या सोल्यूशन है अपने पास? ठीक है, माना डिसएडवांटेजेस हैं, वी अग्री that there are many negative factors which are influencing it, but what can be done to solve the problem? हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका गवर्नमेंट के एंड से आना चाहिए. और गवर्नमेंट के एंड से ये तरीका कैसे आएगा? मेथड्स टू curb unemployment.
खत्म कैसे हो सकता है या कम कैसे हो सकता है? इसको कम करने के लिए हमें सबसे पहली चीज, ये जो हमने इंडस्ट्रीज लिखी थी, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकेंड मेथड इज जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं विच आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलरली, उन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स का जो पूरा बेनिफिट है वो पूरा बेनिफिट उस डिप्राइव्ड सेक्शन को ही मिलना चाहिए जो एक्चुअली में उसका हकदार है। दैट मीन्स मीडियम लेयर्स में क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इस करप्शन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि उन एक्चुअली पॉवर्टी मेजर्स का बेनिफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पॉपुलेशन को मिले जो उसके लिए रिक्वायर्ड है या हकदार है, ठीक है। और थर्ड मेथड ये हो सकता है कि हम ऑल्टरनेटिवली हॉर्टिकल्चर यानी कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल rearing are promoted। ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम इन चीज़ों को या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इन द टुडेज क्लास व्हाट ऑल वी हैड लर्नड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्नड अबाउट the basic qualities of population wherein we focused on education and health। एजुकेशन में हमने 3 क्राइटेरियाज के ऊपर फोकस किया और हेल्थ वाले सेक्टर में हमने 2 क्राइटेरियाज के ऊपर फोकस किया, राइट। देन वी मूव्ड ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयरइन वी स्टडी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन रूरल एरिया यू विल सी disguised unemployment, hidden or seasonal, whereas in urban areas you will see structural unemployment. Then we studied about the factors affecting it, the disadvantages, and lastly the methods to curb unemployment. Thank you so much.